کتابوں کے ورق ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے. اگر طوفان میں کشتی ہو تو بن سکتی ہے تدبیریں، مگر کشتی میں طوفان ہو تو کیا الزام طوفان کا. کھڑا ہوں ریت پر کاغذ کی کشتیاں لے کر، ملا ہے حکم کی دریا کو پار کرنا ہے. ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، ہلاکت خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، دعائیں کرتے ہیں تجھ سے تیرے نبی کے غلام، سکون دل کا نگاہوں میں چین پیدا کر. چلی ہے پھر میرے مالک یزیدیت کی ہوا، میرے قبیلے میں کوئی حسین پیدا کر. فرزانے ہنسے جس پہ وہ دیوانہ نہیں ہوں، پی کر جو بہک جائے وہ مستانہ نہیں ہوں. ہے فرد علم میں بھی مجھے ضبط کی قوت، جو بھر کے چھلک جائے وہ پیمانہ نہیں ہوں. سودا یہ زمانے میں خسارے کا نہیں ہے، ایمان کی دولت سے میں بیگانہ نہیں ہوں. میں شائق انوار حقیقی ہوں سراپا، جو شمع پہ جل جائے وہ پروانہ نہیں ہوں. حضرات افراتفری بند کرو، میں زیادہ ٹائم قطعی آپ کا لینا نہیں چاہوں گا. اتنی ہی دیر میں گفتگو کروں گا جتنی دیر آپ برداشت کرو گے. یہ روح پرور منظر، یہ حسین نظارہ نگاہوں کے سامنے اسلام کے شہزادے ہیں، جن کے رخ زیبا کی زیارت عبادت سے کم نہیں. یہ بچے ابھی ننھا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا. میرے ملت کا شہزادہ ہوا کا رخ بدل دے گا. کیا کبھی سبحان اللہ بھی آتا ہے تو ذرا بولو سبحان اللہ. ادھر چلمن سے میں جھانکوں، ادھر چلمن سے تم جھانکو. لگا دو آپ چلمن کو، نہ میں جھانکوں نہ تم جھانکو. بولو ذرا سبحان اللہ. اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. انشاءاللہ اتنی ہی دیر گفتگو کروں گا اور تاریخ کے آئینے میں گفتگو کروں گا. میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کا، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. کاغذ کا یہ لباس بلند سے اتار دے، برسات ہو گئی تو کہاں منہ چھپائے گا. حضرات اسٹیج پر مقتدر علماء اہل سنت، محتشم سادات کرام، حفاظ کرام، میں تیری بزم میں کس کس سے دشمنی لیتا. لکھا تھا نام تیرا بے شمار چہروں پر. داہنی طرف شہزادہ رسول، یہ وہ لوگ ہیں جن کی محبت کو قرآن نے واجب قرار دیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو میری اولاد سے محبت کر کے مرے گا وہ شہید ہو کر کے مرے گا. دوسری طرف تحدید کی حدیث من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرہ، جو میری اولاد سے بغاوت کر کے مرے گا وہ کافر ہو کر کے مرے گا. حضرات ان کے رخ زیبا کی زیارت کیجئے. یہ علماء حفاظ و قرآ یہ قوم کی امانت ہے. عالم دین روئے زمین پر اللہ کا مقرر کردہ بادشاہ ہوا کرتا ہے. ان کے رخ زیبا کو دیکھیے، یہی علماء حفاظ و قرآ ہیں. جب اپنا علم سینہ بچوں کے سینوں میں منتقل کرتے ہیں تو آپ کا بچہ حافظ قرآن ہوا کرتا ہے. آپ کے بچوں کو کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے. لہذا اس قوم کی حفاظت کرو، مدرسوں کی حفاظت کرو. حضرات آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے کونین کے فرمانروا، دونوں عالم کے تاجدار، سارے نبیوں کے مالک و مختار، عرش کے مقدس قانون کو فرش پر لانے والے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ. کچھ اور ہو نہ ہو اتنا ضرور ہوتا ہے، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے. ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. کاندھا بدلنے والوں، ہمراہ چلنے والوں، پڑھتے رہو دوا ہے صلی علی محمد. حضرات آج یہ حسین منظر کیوں ہے؟ اس لیے ایک علم کی شمع جل رہی ہے، ایک اسلام کا قلعہ ہے جسے
जिसे दारुल फैजुल रसूल कहा जाता है, जहाँ के दरो दीवार से आवाज आ रही है और हमें सुनाई पड़ रही है। मैं कहाँ रुकता हूँ, अर्शो फर्श की आवाज से मुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज से। हजरात, यहाँ का मंजर देख करके हमें कह लेने दिया जाए, हमें अर्ज कर लेने दिया जाए, ऐ मुसलमानों, यही वो मदारिस है जिन्होंने ऐवाने बातिल में जलजला पैदा किया। यही वो मदारिस है जिन्होंने गुलामी की जंजीर तोड़ी थी। यही वो मदारिस है जिन्होंने आलिम रब्बानी पैदा किया। यही वो मदारिस है जिन्होंने हाफिज कुरान पैदा किया। बात अज़मत कुरान की है, कुरान की बात आ गई है। ऐ लोगों, अब मैं अर्ज ये करना चाहूंगा, ये वही कुरान है जो सबसे ज्यादा दुनिया में पढ़ी जाने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा छपने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा जबानों में ट्रांसलेट होने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा हदियतन बिकने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। उसी कुरान के नगमे को सुनने की कोशिश करो, वरक चलेंगे मगर आयते मुकद्दस को किसी भी आग की शिद्दत जला नहीं सकती। हर एक लफ्ज है महफूज इसका सीनों में कि इस किताब को दुनिया मिटा नहीं सकती। आज कुरान की अज़मत पर उंगली उठाई जा रही है। कहीं जा रहा है आयते जिहाद निकाला जाए, कहीं कहा जा रहा है आयते तरका निकाला जाए, कहीं कहा जा रहा है आयते तलाक निकाला जाए। हज़रात, आज कुरान की अज़मत पर माज़अल्लाह नापाक खसारत करने की कोशिश की जा रही है, मगर न हारा है इश्क, न दुनिया थकी है। दिया जल रहा है, हवा चल रही है। इसी कुरान का मजाक उड़ाया गया। कभी कुरान के पन्नों पर शराब को उड़ेल कर कुरान का मजाक उड़ाया गया। कभी कुरान को फाड़ कर गंदी नालियों में डाल करके कुरान का मजाक उड़ाया गया। कभी कुरान को मॉडल के पीठ पर लिख करके कुरान का मजाक उड़ाया गया। मगर ऐ लोगों, कुरान वो पाकीज़ा किताब है जिसके हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने जिम्मे करम में ले लिया है। अब आओ जरा तारीख के आईने में कुरान की अजमत को देखो। ऐ मुसलमानों, मेरे नबी के हयाते जाहिरी में कुरान कहाँ था? कुरान किताब की शक्ल में नहीं था। कुरान कहाँ था? ऊंट की हड्डियों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? ऊंट के चमड़ों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? मार्बल के सिलों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? हाफिजों के सीनों में लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? कपड़ों पे लिखा हुआ था। आखिर कुरान को किताब की शक्ल कैसे दी जा रही है? आओ मुसलमानों, वो जमाना याद करो जब हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत का जमाना था। ये वही सिद्दीक अकबर है जिन्हें यारे गारे मुस्तफा कहा गया। उनका जमाना है। उन्हीं के जमाने में एक जंग लड़ी गई थी जिस जंग को जंगे यमामा कहते हैं। मुसैलमा कज़्ज़ाब से ये जंग लड़ी गई थी। ऐ मुसलमानों, उस जंग में 700 हाफिज शहीद कर दिए गए या 70 हाफिज कत्ल कर दिए गए। ये खबर जब हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंचती है तो दौड़कर हजरत सिद्दीक अकबर की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, हुजूर, अगर यूं ही हाफिज कुरान कत्ल होते रहे तो इंसानों को कुरान की हिफाजत में दुश्वारी पैदा हो जाएगी। इसलिए हमारा मशवरा ये है, कुरान को किताब की शक्ल दे दी जाए, कुरान को इकट्ठा कर दिया जाए, कुरान को एक जा कर दिया जाए। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा था, ऐ उमर, जिसके करने के लिए ना तो कुरान की आयत है और ना ही हदीस मुस्तफा है, वो काम भला मैं कैसे कर सकता हूँ? तब हजरत उमर ने कहा था, सरकार, अगर करने का कहीं हुक्म नहीं है तो कहीं मना भी नहीं किया गया है, इसलिए जवाब की सूरत पैदा हो रही है। तब हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा था, ऐ उमर, अल्लाह तेरी कब्र को रोशन करे, तूने तो सिद्दीक के सीने को रोशन कर दिया। तब कातिबी ने वही को बुलाया गया। ऐ लोगों, कातिबी ने वही को बुलाया गया। हाफिज कुरान कुरान पढ़ता था, कातिब लिखता था। कहीं चमड़ों से
से कुरान के आयतों को इकट्ठा किया जाता था, कहीं ऊंट की हड्डियों से कुरान की आयतों को इकट्ठा किया जाता था, कहीं कपड़ों से कुरान की आयतों को इकट्ठा किया जाता था। ये काम किसके जमाने में हुआ? ये काम हजरत सिद्दीक अकबर के जमाने में हुआ। मशवरा किसका था? हजरत उमर इब्न खत्ताब का मशवरा था। यही वजह है, हजरत उमर की फजीलत को जरा सोचो तो सही। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, अगर नबूवत का दरवाजा बंद ना हुआ होता तो हजरत उमर नबी होते। आओ, हक वो है जो सर चढ़ करके बोले। हकीकत मनाई नहीं जाती है, हकीकत मानने पर मजबूर कर देती है। भारत में एक बापू कहलाने वाली शख्सियत है जिन्हें गांधी कहा जाता है, मिस्टर करमचंद गांधी कहते हैं, अगर मुसलमानों को एक उमर और मिल गया होता तो सारी दुनिया में सिर्फ इस्लाम होता। इस्लाम तेरी नब्ज़ ना डूबेगी हजरता, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। हजरात आओ, अब जरा अज़मत कुरान के पहलू पे गुफ्तगू करना चाहूंगा। मुसलमानों, अकीदत व अज़मत के साथ बैठो। जितनी देर बैठोगे यहाँ तुम्हें कुरान का फैजान मिलेगा। कुरान की अज़मत के सदक़े में अल्लाह तुम्हारा सोया नसीबा जगाएगा, बिगड़ी हुई बातें बनाएगा। ऐ इंजॉय करने वालों, दूर से तमाशा देखने वालों, महफिल में जब आओ तो इंजॉय करने के लिए ना आओ तो अपना सोया नसीबा जगाने के लिए आओ, अपनी मग़फ़िरत के लिए आओ, अपने ज़हन में कुरान की अज़मतों को बिठाने के लिए आओ जरा अज़मत कुरान को समझो। कुरान वो किताब है जो सबसे ज्यादा दुनिया में पढ़ी जाने वाली, सबसे ज्यादा ट्रांसलेट होने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। कुरान की शान पर कुर्बान जाओ। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। कुरान की आयत शाहिद अदल है कि अगर कुरान को पहाड़ पे नाजिल कर दिया जाता तो हैबत कुरान से पहाड़ जल जाता। पहाड़ तो एक ताकतवर चीज है जो आतिश जवाला से भी टकराता है, थपेड़ों से भी टकराता है, तूफान से भी टकराता है, मगर उसके अंदर इतनी ताकत नहीं कि कुरान के ताकत को बर्दाश्त कर ले। मगर आओ, वही कुरान आज हमारे घर का 8 साल का बच्चा पढ़ रहा है, 10 साल का बच्चा पढ़ रहा है, 15 साल का बच्चा हाफिज़े कुरान हो रहा है। मुसलमानों, कुरान अगर पहाड़ पे उतरता तो पहाड़ जल जाता, मगर हमारा बच्चा पढ़ रहा है। ना तो जबान चल रही है, ना तो दिमाग चल रहा है, ना तो कपड़ा चल रहा है, ना तो सर चल रहा है। वजह क्या है? कुरान पहाड़ पे उतरे तो पहाड़ जल जाए, हमारा बच्चा पढ़ रहा है मगर फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐ मुसलमानों, कुरान जलाली भी है, कुरान जलाली भी है। जलाली शान को मेरे पैगंबर ने अपने नबूवत वाले सीने में ले लिया, जमाली शान को उम्मत के हवाले कर दिया। कुरान की अज़मत पर कुर्बान जाओ। कुरान को माज़अल्लाह मिटाने की नापाक जसारत हर दौर में लोग करते रहे, मगर न हारा है इश्क, न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है। इसी अज़मत कुरान का एक मौजज़ा बताकर मैं अपनी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। वाक़या अमेरिका का है। ये वही अमेरिका है जो अपने कल्चर पे नाज करता है, अपनी सोसाइटी पे नाज करता है, अपने गंदे तहजीब पे नाज करता है, जिसके यहाँ अब पहनने के लिए औरतों के पास कपड़े नहीं है, वो अपने गंदे कल्चर पे नाज करता है। मगर आओ जरा अज़मत कुरान को देखो। वही के हॉस्पिटल का वाकया है। एक हॉस्पिटल में 2 औरतों को एडमिट किया जाता है, दोनों के बच्चों के डिलीवरी का वक्त बिल्कुल करीब है, दोनों औरतों के जिस्म से बच्चा पैदा होने का टाइम पूरा हो चुका है। अचानक हॉस्पिटल की बिजली कट जाती है, या यहूदियों ने तखरीबकारी करके कम कर दिया। जब अंधेरा फैला तो दोनों औरतों के जिस्म से 2 बच्चों ने जन्म लिया। एक औरत के जिस्म से बेटा पैदा हुआ, एक औरत के जिस्म से बेटी पैदा हुई। अंधेरा था, बच्चे बदल गए या तब्दील कर दिए गए। ऐ मुसलमानों, जब उजाला फैला लाइट की रोशनी से, ऐ लोगों कमरा जब मुनव्वर हुआ तो दोनों औरतें लड़ने मरने के लिए तैयार हो गई। दोनों का मुतालबा है, बेटा मैंने पैदा किया है, मुझे बेटा चाहिए। ऐ नादान औरतों, तुमने बेटी को ठुकराया है। मेरे पैगंबर ने जन्म लेने वाली बेटियों को सीने से लगाया है, उनका मकाम व अज़मत बढ़ाया है। ऐ मुसलमानों, जब दोनों औरतें लड़
मरने के लिए तैयार हो गई तो डॉक्टरों की टीम आगे बढ़ती है। उन्हीं डॉक्टरों की टीम में एक डॉक्टर थे जो औलादे गौसे आजम थे, हसनी हुसैनी सैयद थे, जिनका नाम सैयद अब्दुल रहमान कादरी था। सैयद अब्दुल रहमान कादरी तमाम यहूदो नसारा से कहा करते थे, मेरे कुरान में हर सवाल का जवाब मौजूद है, मेरे कुरान में हर केस का जजमेंट मौजूद है, मेरे कुरान में हर मुकद्दर का फैसला मौजूद है, मेरे कुरान में हर बीमारी का इलाज मौजूद है। ऐ लोगों, तब यहूदियों ने कहा, जब अब्दुल रहमान कहता है उसके कुरान में हर सवाल का जवाब मौजूद है, तो हम डीएनए टेस्ट ना करेंगे, किसी मशीन का सहारा ना लेंगे। अब जरा अपने कुरान से पूछ करके अब्दुल रहमान को बोले, बताए कि बेटा किस औरत ने पैदा किया, बेटी किस औरत ने पैदा किया। मामला उलझा हुआ है। हजरात, जब ये मामला सैयद अब्दुल रहमान कादरी तक पहुंचा तो उन्होंने कहा, ये फैसला हम नहीं करेंगे, आलिम रब्बानी करेंगे। मिस्र की तरफ जामे अजहर को कॉल किया, एक मुफ्ती को रुजू किया और कहा, आज जालिमों ने अज़मत कुरान पे हमला कर दिया है। अभी तक तो इस्लाम को टारगेट बनाते थे, अब तो कुरान पर हमला कर दिया है। लिहाजा ऐसा कोई जवाब दे दीजिए जिससे अज़मत कुरान भी उजागर हो जाए और हमारी इज्जत आबरू बच जाए। आलिम रब्बानी ने कहा, सैयद साहब घबराने की जरूरत नहीं है, कुरान में एक आयत है, वो लिज़्ज़क्रे मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन, कुरान का फैसला है। जब मैयत का तरका बटेगा, मरने वाले की प्रॉपर्टी बटेगी, मरने वाले की मीरास बटेगी, जब मैयत का माल बटेगा तो ऐ लोगों, तमाम लोगों का हक दे दिया जाएगा। मगर जब बारी आएगी बेटे और बेटी की तो कुरान का फैसला है, बेटे को 2 हिस्सा दिया जाएगा, बेटी को 1 हिस्सा दिया जाएगा। अब इसी कुरान के फैसले से ये भी सुन लो, जहां जहां बेटे का हक है वही वही बेटी का हक है। दुकान में बेटे का हक है, दुकान में बेटी का हक है, खेत में बेटे का हक है, खेत में बेटी का हक है, बैंक बैलेंस में बेटे का हक है, बैंक बैलेंस में बेटी का हक है। फर्क कितना है, बेटे को डबल दिया जाएगा, बेटी को सिंगल दिया जाएगा। मामला आगे बढ़ा। आलिम रब्बानी ने कहा, सुनो, जब कुरान का फैसला है, मर्दों की पोजीशन को कुरान ने डबल रखा है, तो एक काम करो, दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाल लो और लेबोरेटरी के हवाले कर दो और रिपोर्ट का इंतजार करो। जिस दूध में प्रोटीन का मात्रा डबल हो, हयातीन का मात्रा डबल हो, विटामिन का मात्रा डबल हो, लामीन का मात्रा डबल हो, उसको बेटा दे दिया जाए। जिसमें सिंगल हो उसको बेटी दे दी जाए। यहूदी हंसने लगे, अभी तक तो हम इस्लाम का मजाक उड़ाते थे, अब तो हम कुरान का भी मजाक उड़ाएंगे। तू क्या उड़ाएगा? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दोनों के जिस्म से दूध निकाल कर लेबोरेटरी के हवाले कर दिया गया। इधर सैयद अब्दुल रहमान सजदे में है और खुदा से दुआ कर रहे, या अल्लाह हमारी इज्जत बचा ले। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। जब सजदे से सर को उठाते हैं, ऐ लोगों, प्रिंट होकर के जब रिपोर्ट निकलती है तो यहूदियों के हाथ से तोते उड़ गए। एक दूध में प्रोटीन का मात्रा डबल है, हयातीन का मात्रा डबल है, विटामिन का मात्रा डबल है, लामीन का मात्रा डबल है, एक में सिंगल है। ऐ मुसलमानों, जिसमें डबल था उसको बेटा दे दिया गया, जिसमें सिंगल था उसको बेटी दे दी गई। इस मौजज़े कुरान को देखकर 1000 यहूदो नसारा ने ये कह करके कलमा पढ़ा था, ऐ अब्दुल रहमान, मैंने मान लिया तेरा दीन सच्चा है, तेरा कुरान सच्चा है, तेरा मजहब सच्चा है, तेरा खुदा सच्चा है, तेरे रसूल सच्चे हैं। अब देर न कर, मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना ले। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल। आप लोग जाइए, बैठ जाइए, यहाँ तमाशा न बनिए, या तो बैठ जाओ। नारे तकबीर।
آپ لوگ چاہتے ہیں تقریر ہو کہ ختم کر دیا جائے؟ تو ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے کتنے لوگ تقریر نہیں چاہتے ہیں؟ حضرات یہ سنی ہے، جذبات میں ہاتھی اٹھاتے ہیں، مگر حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے ہزار مار پڑی اٹھ نہ سکے لیٹ گئے۔ حضرات آپ بیٹھو، زیادہ ٹائم قطعی نہیں لینا چاہوں گا، لیکن جتنی گفتگو کروں گا آپ کے مطلب کی گفتگو کروں گا۔ قرآن پڑھو، کبھی کبھی نعرہ بھی لگا دیا جائے، آپ بھی کبھی کبھی سبحان اللہ بولا کرو۔ کمنٹ تو تم لوگ یہ کرتے ہو مولانا بھول جاتا ہے تو سبحان اللہ کہلواتا ہے، قطعی مولانا نہیں بھولتا ہے، 4 گھنٹہ نہیں بولے گا، لیکن سنو تم سبحان اللہ بولو گے تو ثواب تم کو بھی ملے گا اور ہم کو بھی ملے گا۔ ادھر جو لوگ کھڑے ہیں اگر الیکشن میں کھڑے ہیں تو وہیں کھڑے رہے، اگر بزم محبت میں ہے تو کرسیاں خالی ہیں۔ آؤ ادھر چلمن سے تم جھانکو، ادھر چلمن سے میں جھانکو، لگا دو آگ چلمن کو، نہ میں جھانکو نہ تم جھانکو۔ نبی سے محبت کرنے والوں، نبی سے پیار کرنے والوں، نبی سے عشق کرنے والوں، ہم نے عظمت قرآن پر تھوڑی دیر گفتگو کی۔ ہماری حیثیت کیا ہے کہ میں قرآن پر گفتگو کر سکوں؟ جو اللہ نے توفیق دیا، سراج چشتی نے بیان کرنے کی سعادت حاصل کیا۔